Good afternoon, dear students. Today we will learn the DNA chemical composition and its double helical model. So let's get started. Let's talk about the history. In 1869, Friedrich Miescher isolated the nuclein, that is nucleic acid. Then in 1880, Emil Fischer, who isolated pyrimidines and purines. Albert Cossel identified the nitrogen bases, 5-carbon sugar and phosphoric acid. Then Alpern suggested the nucleic acid. And lastly, Watson and Crick proposed the structure of a DNA. So ये जो भी बैकबोन ऑफ डीएनए है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ये सब इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. So first of all, we should know what is DNA. So DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. It is found in chromosomes, mitochondria and chloroplast and it carries the genetic information. See, ग्रिफिथ ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1928 में. देन हर्शे एंड चेज ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे टू प्रूव दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसा, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? It is the building block of nucleic acid and it consists of a bases. Bases कौन से nitrogen bases. Then there is a sugar, means pentose sugar, and phosphate which is in the form of phosphoric acid. So ये तीन चीज़ों से न्यूक्लियोटाइड बना है और ये न्यूक्लियोटाइड से क्या बना है अपना DNA. So these are the components which are present in the backbone of a DNA: nitrogen base, sugar and phosphate. So here its structure. This is the phosphate group, this is the base. It may be purines and pyrimidines. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे प्यूरिन्स कौन से है, pyrimidines कौन से है. सो दीज आर द बेसिक नाइट्रोजन बेसिस. एंड थर्ड वन इज द शुगर, that is pentose sugar, because it is having a 5-carbon compound. It is that's why it is known as the pentose sugar. So न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड ये दो तरीके के टर्म्स है. See, if there is only a nitrogen base attached to a sugar, we will call it as a nucleoside. And if there is attachment of phosphate group to these two nucleoside, that is sugar and base, it is known as the nucleotide. So अगर phosphate group attach है nucleoside को तो उसे हम nucleotide कहेंगे. लेकिन if there is only sugar, means pentose sugar, and a nitrogen base is there, we will call it as a nucleoside. So there is a difference. So DNA क्या है? It is the deoxyribonucleic acid. And what is RNA? It is the ribonucleic acid. अब DNA deoxy क्यों कहा गया है और RNA को राइबोज ही क्यों कहा गया है, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं. See, these two are the structure of DNA and RNA. First one is of a DNA and second one is of a RNA. Here you can see on the position second there is only H. So ये जो pentose sugar है DNA की, it is known as the deoxyribose sugar, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, it is without oxygen. So it is known as the deoxyribose nucleic acid. And here in this RNA on the second position there is O, that's why it is the ribose. So it is ribonucleic acids. So this is the difference in between DNA and RNA. Now let's talk about this pentose sugar, phosphate group and nitrogen bases. So here there is a structure of double helical DNA. This is the 3' to 5' end and this is the 5' 3' end. This is the backbone of a DNA which is having three main components, that is pentose sugar, nitrogen bases and phosphate group. So आप देख सकते हैं phosphate group जो है वो अटैच है sugar molecule को, that is pentose sugar, and this pentose sugar it attached to the nitrogen base. So यहाँ पे कुछ bonds है जो ये तीनों कंपोनेंट्स को लिंक करके रख रहे हैं. सो इफ फॉस्फेट ग्रुप इट अटैच टू द शुगर मॉलिक्यूल, इट इज़ नोन एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. if this sugar molecule is attached to the nitrogen base, it is known as, that bond is known as the glycosidic bond. And if
two nitrogen bases are attached to each other, it is the hydrogen bond. So there are three main bonds जो इन तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ के रखते हैं. सो फॉस्फेट ग्रुप शुगर को अटैच है कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. शुगर अटैच है नाइट्रोजन बेस से, सो दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड टू नाइट्रोजन अटैच है, एक दूसरे नाइट्रोजन बेसिस अटैच है, उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दीज थ्री आर द मेन बॉन्ड्स दैट are present in the backbone of this DNA. Now here is the another elaborated image. Here you can see the pentose sugar, phosphoric acid in the form of phosphate group, and these are the nitrogen bases, and all these three main bonds, glycosidic bond, phosphodiester bond and hydrogen bond. Here is the sequence, particular sequence, that is ATGC. These are the नाइट्रोजन बेसिस, दीज आर द pyrimidines एंड प्यूरिन्स. हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल इतना याद रखिए कि हियर इज़ द सीक्वेंस विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर सीक्वेंस, दैट इज़ TACG. इफ देयर इज़ A, दिस इज़ प्यूरिन, it is attached to the thymine by two hydrogen bond, and if you see the G, which is complementary to the C, it is attached to the C with three hydrogen bonds. Actually this is the Chargaff's rule, that purines are equal to the pyrimidines and pyrimidines are equal to purines. If you see this structure, ये अनकॉइल्ड DNA है. अगर कॉइल्ड DNA आपने देखा है तो वो स्पाइरली अरेंज्ड है, लेकिन अगर हम उसे अनकॉइल्ड करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा. So here you can see 3' end and 5' end, and other side there is a 5' end, and last one is the 3' end. अब ये 3' और 5' क्या है? If there is an attachment of phosphate group to the third number of carbon of a sugar or pentose sugar, it will call it as a 3'. अगर पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो उसे हम 3' कहेंगे, और अगर वो फिफ्थ कार्बन पे अटैच है फॉस्फेट ग्रुप तो हम उसे 5' एंड कहेंगे. सो इट डिपेंड्स कि फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच है, थर्ड नंबर पे या फिफ्थ नंबर पे. सो इस तरह से वो डिसाइड किया जाता है विच इज़ द 3' एंड एंड विच इज़ द 5' एंड. So this is a basic structure of a DNA, and this is the main backbone of a DNA. Now let's see the basic structure of pyrimidine and purine. So these are nitrogen containing bases which are heterocyclic compounds, and they are having nitrogen in their ring form में है और उसमें nitrogen compound है. They are placed at a right angle to the axis of sugar molecule. सी, अगर आप pyrimidine को देखेंगे, सो दीज आर स्मॉलर एंड सिंगल रिंग कंपाउंड विथ नाइट्रोजन, और कौन सी पोजीशन पे है? 1 and 3. और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? थाइमिन एंड साइटोसिन. सो थाइमिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ DNA में, और थाइमिन की जगह RNA में प्रेजेंट होता है यूरासिल. सो दीज आर द pyrimidines, while purines are larger and double ring compounds, and they are containing heterocyclic rings. सो इसके एग्जाम्पल है एडेनिन एंड ग्वानिन. सो थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिल एंड साइटोसिन आर pyrimidines, and adenine and guanine are purines. Now here are the structure of these pyrimidines, cytosine, thymine and uracil. DNA में थाइमिन pyrimidine प्रेजेंट होता है और RNA में यूरासिल प्रेजेंट होता है. अगर आप नाइट्रोजन की पोजीशन देखेंगे, सो इट इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 1 and 3. सो pyrimidine में नाइट्रोजन जो है वो 1 and 3rd पोजीशन पे होता है. सी, प्यूरिन्स में सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है. pyrimidine का स्ट्रक्चर एज इट इज़ होता है, लेकिन प्यूरिन्स में क्या होता है? एक्स्ट्रा हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है और वो लार्जर होते हैं स्ट्रक्चर प्यूरिन्स का. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्यूरिन. सो दीज आर द pyrimidines, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, एंड दीज आर द प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन. सो
यहाँ पे भी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन कंपाउंड है, लेकिन प्यूरिन्स में क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लार्जर देन pyrimidines and they contains the heterocyclic ring. So this is the main difference in between pyrimidine and purines. Now this was about the chemical composition of DNA. Now let's see the DNA structure. So this is a basic structure of a DNA. So अब आपको बैकबोन पता है DNA की, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस है. सो ये सिंपल डायग्राम है. जो सेंटर में आप ऑरेंज कलर स्ट्रिप्स देख रहे हो, दीज आर दी नाइट्रोजन बेसिस एंड देयर आर hydrogen bond who join these nitrogen bases, and these are the strips. Green color जो coiled structure है, all these are the backbone, that is phosphate group and the pentose sugar. So ये coiled arrange होता है DNA. So इसकी जो diameter होती है वो कितनी होती है, 20 angstrom. Complete DNA diameter is 20 angstrom. If there is वन स्पायरल, अगर आप देखेंगे एक टर्न हो गया पूरा कंप्लीट, सो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 nm. सिंगल जो टर्न होता है डीएनए में कॉइल्ड स्ट्रक्चर, उसमें कितना डिस्टेंस होता है, 3.4 nm. देन देयर आर प्रेजेंस ऑफ अ माइनर ग्रूव एंड अ मेजर ग्रूव. माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव हमेशा अल्टरनेट तरीके की होगी. अगर आप यहाँ पे देखोगे माइनर ग्रूव, उसके नीचे मेजर ग्रूव, फिर उसके नीचे माइनर ग्रूव रहेगी, लेकिन माइनर ग्रूव के अपोजिट कौन सी ग्रूव रहेगी, मेजर ग्रूव, एंड देन मेजर ग्रूव के बाद फिर से माइनर ग्रूव. सो ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होगा. देन कंप्लीट जो एक कंप्लीट टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर्स होती है. सो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 nm, और इट इज़ ऑल्सो 3.4 एम्स्ट्रॉम. सो ये जो इतना डिस्टेंस है, इसे हम एक जो टर्न है इसे कितना डिस्टेंस कहेंगे, 3.4. सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ अ डीएनए. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स कितना रहेगा, हमेशा 20 एम्स्ट्रॉम, एंड वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स मेजर्स 34 एम्स्ट्रॉम, और वी कैन से इट इज़ 3.4 nm. देन देयर आर 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मीन्स एक टर्न में कितना, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होंगी, 10 पेयर्स होंगी. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4 एम्स्ट्रॉम. सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ डीएनए, एंड दिस डीएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जैसे कि हमने देखा कि नाइट्रोजन बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस. और इसकी बेस पेयरिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है. जैसे कि एडेनिन जो है, इट विल ऑलवेज पेयर विद द थायमिन, एंड ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन. और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. जब एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करेगा, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ अगर पेयर करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में वो पेयर करेगा. हियर यू कैन सी दिस स्टेयर्स जो स्पाइरली अरेंज्ड है. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे दिखता है, इस तरह से दिखेगा. लेट्स सी इट्स अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए, there are 2 anti-parallel polynucleotide chains which are wound around the same axis. Then sugar phosphate chains wrap around the periphery. सेंटर में क्या रहेगा, कोर में क्या रहेंगे, बेसिस रहेंगे, और उसके पेरीफेरी में क्या रहेंगे, शुगर एंड फॉस्फेट चेन रहेंगे. सो बेसिस कौन से है, A, T, C एंड G, which occupy the core forming complementary, that is A equal to T and G equal to C. So these are the Watson-Crick base pairs. Now this DNA double helix is held together mainly by the hydrogen bond. जो main bond जो है वो कौन सा है, hydrogen bond. A chemical bond in which a hydrogen atom of one molecule
is attracted to an electronegative atom, especially a nitrogen, oxygen or fluorine atom, usually of another molecule. सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये मेन बॉन्ड है जो डीएनए हेलिक्स को स्टेबलाइज करने का काम करता है, उसे जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. नाउ लेट्स सी द चार्गव्स रूल. Chargaff developed a technique to measure the amount of these each base pairs which are present in the DNA. So he stated that the amount of adenine will always equal to the amount of thymine and the amount of guanine is always equal to the amount of cytosine. It means adenine क्या है, guanine क्या है, these are the purines. So purines, the amount of purines are always equal to the amount of pyrimidine. Now if you see this structure, अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे कि A and T जो है that is purines is paired with the thymine, means adenine paired with the thymine and guanine paired with the cytosine. So there is a triple bond in between guanine and cytosine and there are double bond in between adenine and thymine. अगर थाइमिन नहीं है, अगर ये आरएनए है तो थाइमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा. सो दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए विच आर हैविंग दिस प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन. यहाँ पे चार्गव रूल जो है वो अप्लाई होता है. Then base stacking. The bases in DNA are planar and have a tendency to stack, means ये neatly arranged होते हैं. And major stacking forces कौन से हैं, hydrophobic interaction and van der Waals forces. Now there are different structural forms of DNA. So कौन से DNA के forms है, A DNA, B DNA and Z DNA. So सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है. सो A DNA की प्रॉपर्टी कैसी है, सबसे पहला है हेलिक्स हैंडेडनेस, मीन्स राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है. सो द डीएनए A DNA and B DNA are always right handed where Z DNA is always left handed. now base pair per turn कैसे होती है. अब आपको बेसिक जो हमने डीएनए पढ़ा है वो कौन सा था, बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड डीएनए, दैट इज़ बी फॉर्म ऑफ अ डीएनए. सो ए की जो बेस पेयरिंग थी वो कैसी है, पर टर्न कितने बेस पेयर्स होंगे, 11 बेस पेयर्स, और बी डीएनए में 10.4 बेस पेयर्स विल बी देयर एंड जेड में 12 बेस पेयरिंग रहेगी. लेट्स सी द कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सी जो अरेंजमेंट होती है स्ट्रैंड के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वो हमेशा कैसे रहेंगी, एंटी पैरेलल रहेगी. जैसे हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था कि 3' to 5' एंड होता है वन साइड और दूसरे साइड में कैसे होता है 5' to 3' एंड होता है. सो ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल अरेंज्ड होते हैं. सो कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ने का काम करता है. सो इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है ए डीएनए में और बी डीएनए में भी. लेकिन जेड डीएनए में ये अल्टरनेट भी हो सकती है, मीन्स एंटी भी हो सकती है और सिम भी हो सकते हैं, सेम साइड भी हो सकते हैं. देन मेजर ग्रुप. सो ए डीएनए और बी डीएनए में जो है वो मेजर ग्रुप प्रेजेंट है और जेड डीएनए में जो है वो मेजर ग्रुप अब्सेंट है. So these are the different forms of a DNA. The last one is the in eukaryotic cell DNA is folded into chromatin. So ये जो है DNA का जो बेसिक है आपको पता चल गया है कि DNA is the genetic material, ये प्रूव हो गया. अब DNA का केमिकल कंपोजिशन आपको पता है, DNA का बेसिक स्ट्रक्चर भी पता है और DNA के फॉर्म्स भी पता है. सो बायोलॉजिकली जो मेन डीएनए है जो कि हाइड्रेटेड होता है वो कौन सा है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए. अब आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि डीएनए पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम मॉडल, 30 nm फाइबर, डीएनए की कॉइलिंग कैसे होती है, कौन से प्रोटीन्स वहाँ पे एक्ट करते हैं, कौन से एंजाइम्स वहाँ पे रीमॉडलिंग का काम करते हैं. सो ये सब चीज़ें हम बाद में लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो अब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, केमिकल कंपोजिशन पता है और उसकी हिस्ट्री भी पता है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. सो टिल देन सी यू.